हेलो एवरीवन। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मेडॉक्स रॉड। ये एक ऐसे टेस्ट है जिससे हम फोरियाज को डिटेक्ट करते हैं पेशेंट की आई में, राइट। सो फोरियाज आर दो स्क्विंट विच आर नॉट विजिबल टू द पेशेंट, जो पेशेंट को बज़ाहिरी तौर पे नज़र नहीं आ रहे, बट स्टिल दे आर कॉजिंग प्रॉब्लम टू द पेशेंट, राइट। सो by the help of the Maddox rod, we used to evaluate those hidden squints, and this test can be performed at near, which is approximately the 33 centimeter distance, and can also be done for the far foreas, right, which the distance for the far measurement can be 6 meters. And ऐसा हो सकता है कि एक patient distance के लिए orthophoric हो, but he has squint in the near. So you can find Maddox rod in the trial box, and it is made up of series of plano convex cylindrical lenses. Basically इसकी construction क्या है कि it is made up of cylindrical lenses. एक surface होती है या एक side is totally plain, while the other is made up of convex cylindrical lenses, right. और आपको कुछ series से दिखेंगे, like there are the series of cylindrical lenses which are fused together, and thus this is the construction of the Maddox rod. Now how we are going to perform this test? So before going into this topic, we should understand the principle of the Maddox rod. Maddox rod is basically based on the principle of the image dissociation. एक आंख जो है वो एक अलग image देखेगी and और दूसरी आंख एक अलग image देखेगी. So this is what image dissociation means. Now how we are going to perform this test is performed binocularly, and Maddox rod is placed in front of the eye which needs to be tested, राइट. सो जो आंख जिस आंख को आपने चेक करना है उसके आगे आप मेडॉक्स रॉड को प्लेस करेंगे. सो व्हाट मेडॉक्स रॉड विल डू? मेडॉक्स रॉड विल कन्वर्ट द स्पॉट ऑफ लाइट इनटू द स्ट्रीक. सबसे पहले आपने इसको बायनोकुलरली परफॉर्म करना है. पेशेंट की एक आई के आगे मेडॉक्स रॉड, दूसरी के आगे कुछ भी नहीं. नाउ आपने डिस्टेंस पे जाना है, बिकॉज वी हैव सेड दैट हम इसको डिस्टेंस और नियर दोनों के लिए इवेलुएट करते हैं. सो नाउ डिस्टेंस पे लाइट थ्रो करनी है पेशेंट के आई पे. एक आई जिसके आगे में डॉक्स रोड होगा वो कन्वर्ट करेगा स्ट्रीक को, स्पॉट ऑफ लाइट, यानी जो आप टारगेट पेशेंट को दे रहे थे दैट वाज अ स्पॉट ऑफ लाइट, उसको कन्वर्ट कर देगा स्ट्रीक में, राइट. सो दिस इज़ हाउ जिस आई के आगे में डॉक्स रोड होगा वो एक अलग इमेज देखेगा, दैट विल बी द स्ट्रीक ऑफ लाइट. और जिसके आगे में डॉक्स रोड नहीं है इट विल सी द dot of light. So here in this picture you can see that the torch is at near. You are checking the near foria. Now there is a Maddox rod placed on the left eye, and right eye doesn't have any lens in it. So what happens over here कि right eye जो है वो spot of light देखेगी जो torch से light जा रही है, और जो हमारे पास लेफ्ट आई है जिसके आगे में डॉक्स रोड आपने प्लेस किया है दैट विल सी द स्ट्रीक, राइट. सो व्हाट हैपेंड ओवर हियर कि दिस इज़ हाउ द इमेज डिसोसिएशन अकर्ड इन द पेशेंट्स आई. सो वन आई विल सी different image while the other will see the different image from the right ones. So here this is for the distance. You have done the same procedure. The torch will be at the 6 meters, while for near the torch will be at the 33 centimeters. But the procedure for both these for distance and nears remain the same. So now this is the important thing, that if you want to check the vertical foria. Now vertical forias include hyperphoria, the eye gets upward, and the hypophoria, the eye may turn to or is a bit below the normal level. So this is the वर्टिकल फोरिया. इफ़ यू वांट टू मेजर द वर्टिकल फोरिया, आपने हाइपर या हाइपो इवेलुएट करना है पेशेंट के आई में, तो मेडॉक्स रोड विल बी प्लेस्ड वर्टिकली. आपने मेडॉक्स रोड को वर्टिकली ही प्लेस करना है. सो हियर यू कैन सी कि राइट आई के आगे कुछ भी नहीं है, बट लेफ्ट आई के आगे आपने मेडॉक्स रोड प्लेस किया. यू वांट टू इवेलुएट द hypo or hyperphoria. So what you have done that you have placed the streak because you want to check the vertical foria. आपने vertical deviation check करनी है, तो आपने मेडॉक्स रोड को vertical ही रखना है, लेकिन जो पेशेंट देखेगा that will be the horizontal streak. So now अगर पेशेंट कहता है कि उसको डॉट और स्ट्रीक एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज्ड नज़र आ रहे हैं, दैट मीन्स जिस आई के आगे में डॉक्स रोड आपने प्लेस किया है दैट इज़ ऑर्थोफोरिक. इट मीन्स इट डजेंट हैव एनी काइंड ऑफ डेविएशन इफ़ इट इज़ सुपर इम्पोज्ड. अगर पेशेंट कहता है कि जो डॉट है वो बिलो द स्ट्रीक, यानी जो स्ट्रीक है वो ऊपर है और डॉट नीचे है, दिस मीन्स दैट द पेशेंट्स लेफ्ट आई इज़ हाइपोट्रोपिक.
So this is how you can evaluate the hyper or hypo. Now if patient says कि जो डॉट है वो ऊपर की तरफ है स्ट्रीक से, so this means that the patient लेफ्ट आई इज़ द हाइपरट्रोपिक. सो यू हैव टू रिमेंबर कि आपने डॉट को कंसीडर करना है. अगर पेशेंट कहे कि डॉट ऊपर है इट मीन्स हाइपरट्रोपिक है आई, अगर डॉट नीचे है तो इट मीन्स हाइपोट्रोपिक है आई, वो जिसके आगे मेडॉक्स रॉड है. नाउ फॉर द हॉरिजॉन्टल फोरियाज, अगर आपने हॉरिजॉन्टल फोरिया चेक करना है सो इट इंक्लूड्स ईजोफोरिया एंड एक्सोफोरिया. सो मेडॉक्स रॉड को आपने हॉरिजॉन्टल ही प्लेस करना है, लेकिन जो पेशेंट स्ट्रीक देखेगा दैट विल बी वर्टिकल. सो अगर पेशेंट ने आपने चेक करना है कि पेशेंट की आई में ईजो या एक्सोफोरिया है, तो यू जस्ट हैव टू प्लेस द मेडॉक्स रॉड हॉरिजॉन्टली. इन दिस पिक्चर यू कैन सी क्या हमने हॉरिजॉन्टल फोरिया मैयर करना था, हमने ईजो और एक्सो मैयर करना था, तो हमने मेडॉक्स रॉड को हॉरिजॉन्टली ही प्लेस किया है. स्ट्रीक्स जो हैं वो हॉरिजॉन्टल हैं, लेकिन जो सीरीज़ हैं कंसलेंट्रिकल लेंस की मेडॉक्स रॉड की वो हॉरिजॉन्टल है, लेकिन जो पेशेंट को स्ट्रीक ऑफ लाइट नज़र आ रही है दैट इज़ वर्टिकल. सो दिस इज़ हाउ इमेजेस डिसोसिएट. राइट आई डॉट दिखेगी, लेफ्ट आई जिसके आगे मेडॉक्स रॉड है दैट विल सी द स्ट्रीक ऑफ लाइट. सो नाउ अगर तो हमारे पास patient says that both these dot and streak are superimposed to each other. तो अगर डॉट लाइट के ऊपर है इट मीन्स दैट द पेशेंट्स लेफ्ट आई इज ऑर्थोफोरिक, देयर इज नो हॉरिजॉन्टल डेविएशन प्रेजेंट इन द पेशेंट्स आई. नाउ इफ पेशेंट सेज कि डॉट राइट साइड पे है एंड स्ट्रीक लेफ्ट साइड पे है, इट मीन्स दैट द पेशेंट्स आई इज ईजोफोरिक. वाई? बिकॉज हमने लाइट थ्रो की तो राइट आई डॉट ही देख रही थी और लेफ्ट आई स्ट्रीक ही देख रही थी. तो इट मीन्स दैट राइट आई का इमेज राइट साइड पे बन रहा है वाइल लेफ्ट आई का इमेज लेफ्ट साइड पे बन रहा है. सो दैट इज़ वाई इट इज़ द अनक्रॉस्ड डिप्लोपिया. पेशेंट विल बी हैविंग uncrossed diplopia and the left eye is esophoric. That is why there is the dot is on the right side because right eye dot ही देख रही थी तो it is in the same direction, और लेफ्ट आई स्ट्रीक देख रही थी the streak is in the same direction जिस साइड पे मेडॉक्स रॉड था. so now this is uncrossed diplopia condition and patient's left eye is esophoric. now if the patient says that the streak is on the right side but the dot is in the left side, so this means that मेडॉक्स रॉड आपने लेफ्ट आई के आगे प्लेस किया था तो स्ट्रीक उसको उसी साइड पे दिखनी चाहिए थी अगर कोई डेविएशन ईजो होती. बट ही इज सेइंग नाउ कि स्ट्रीक राइट साइड पे है एंड द dot is on the left side, so this means there is a crossing over of the image. So due to this crossing over you should remember that it is a exophoric condition और patient को यहाँ पे crossed diplopia होगा and the eye जिसके आगे आपने मेडॉक्स रॉड प्लेस किया है वो हमारे पास एक्सो में गई हुई है. राइट, हिडन स्क्विंट उसमें क्या है एक्सोफोरिया. so that is why there is a crossed diplopia in this patient's eye. So this is all about today's lecture, which is medox rod and its interpretations. I hope it's very clear to you. In case of any problem, comment in comment section. Thank you so much.